Good morning, students. Today we are going to start our chapter number 6 in geography, water and its circulation. This chapter is about how water circulates on the earth surface. Water जो है earth surface पे कैसे circulate करता है. The term water is synonymous with life. Water is essential for the survival of all living beings on the earth and is also a very important natural resource. In fact, the presence of water in large quantities makes the earth unique among all the planets of the solar system. Now water का हम अगर दूसरा synonymous देखें तो water को हम life भी कह सकते हैं कि without water life is not possible on the earth surface. Water is very important for all the living beings on the earth surface and it is very important natural resource. The presence of water in large quantity on the earth surface पे जो water present है large quantity में it makes the earth unique planet in the solar system कि solar system में earth को एक unique planet बनाता है. Now we start our chapter. About 71% of the surface of the earth is covered with water. No wonder then that our earth is often referred to the watery planet. All the water bodies such as oceans, seas, river, lakes, etc. together make up the hydrosphere. It also includes ice sheets in the polar and high mountain regions, underground water and other water vapor in the air. Now if we talk about the earth's surface, 71% of the earth's surface is covered with water. No wonder, अगर हम कोई इसमें wonder की बात नहीं, if we call earth as a watery planet, we can also call earth as a watery planet. Water bodies, so many water bodies are there on earth surface, ocean, sea, river, lake, etc. and combinedly we call them hydrosphere. हम सबको मिलाकर क्या कहते हैं? hydrosphere. जितने भी water bodies हैं earth surface पे, ocean, sea, river, lake, pond, all these are included in hydrosphere. It also includes ice sheets. इसमें और क्या इंक्लूड होती है? आइस शीट्स भी हैं जो पोलर रीजन में हाई माउंटेन में जो शीट से कवर एरिया है, ग्लेशियर्स हैं, अंडरग्राउंड वाटर एंड द वाटर वेपर, ऑल दीज कम इन हाइड्रोस्फीयर. ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? हाइड्रोस्फीयर में. नाउ वाटर साइकिल. द वाटर साइकिल or the hydrological cycle is the continuous change of water from one physical state to another and its circulation from the surface of the earth to the atmosphere and back. Now students, you are studying about water cycle from your previous classes. Water cycle को हम hydrological cycle भी कह सकते हैं. Water क्या है? Water from one physical state. Water अपनी form को change करता है from one state to another state. एक state से दूसरी state में and circulate. वो circulate होता है atmosphere में and then came back to the atmosphere. Ocean water evaporates due to sun's heat. अब what is water cycle? Ocean water evaporate होता है due to sun's heat. सन की हीट के कारण जो ओशन वाटर है इट्स इवापोरेट, वो इवापोरेट होता है एंड रीचेस टू द एटमॉस्फेयर एज वाटर वेपर, और वो वाटर वेपर के द्वारा एटमॉस्फेयर में पहुंच जाता है. इन द अपर लेयर्स ऑफ द इन द अपर लेयर ऑफ एयर कूलिंग एंड कंडेंसेशन टेक्स प्लेस एंड वाटर वेपर चेंजेस इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स. जैसे ही ये वाटर वेपर के रूप में अपर लेयर्स में पहुंचता है अर्थ की, इट स्टार्ट कूलिंग, वहाँ पर वाटर वेपर कूल होने लग जाता है. देन कंडेंसेशन टेक्स प्लेस, फिर उसमें कंडेंसेशन प्रोसेस होता है और वाटर वेपर चेंज हो जाता है वाटर ड्रॉपलेट्स में, पानी की बूंदों में चेंज हो जाता है. दीज ग्रो इन साइज एंड इवेंचुअली फॉल डाउन एज प्रेसिपिटेशन. ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं इनकी साइज जैसे ही इनमें जो वेट बढ़ता है, वज़न बढ़ता है, इनकी साइज़ बढ़ती है, दे स्टार्ट फॉलिंग ऑन द ग्राउंड. ये वज़न के कारण, वेट के कारण ज़मीन की तरफ गिरने लगती हैं एंड दैट प्रोसेस इज़ नोन एज प्रेसिपिटेशन. उसको हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं. प्रेसिपिटेशन के फॉर्म्स अलग अलग हैं. इन द रेनफॉल इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल, किसी भी रूप में, स्लीट में, स्नो, हैवी स्नोफॉल के रूप में जो है वाटर नीचे वापस ज़मीन में आता है. Some of the water falling on the land seeps down into the earth while most of it flows into river which again join the ocean. कि जो water
रेनफॉल के रूप में या आइस के रूप में, स्नो के रूप में जो आता है। कुछ जो पानी है वो तो लैंड एब्जॉर्ब कर लेती है, हमारी ज़मीन के अंदर चला जाता है। वाइल मोस्ट ऑफ, लेकिन ज़्यादातर जो पानी है वो फ्लो करता है रिवर्स में, विच अगेन ज्वाइन द ओशन, और फिर वो रिवर्स के द्वारा वापस ओशन में पहुंच जाता है। इवेपोरेशन स्टार्ट्स ऑल ओवर अगेन, द साइकिल कंटिन्यूज, और फिर ओशन से अगेन इवेपोरेशन होता है पानी का, फिर वो वाटर वेपर के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में पहुंचता है। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस, एक पूरी साइकिल है जो कंटिन्यूस चलती है, और इस साइकिल को हम क्या कहते हैं? वाटर साइकिल। नाउ पेज नंबर 137, फ्रेश वाटर। Water that contains very little dissolved salt is called fresh water. Now what is fresh water? कि water that contain, वो पानी जिसमें बहुत सॉल्ट का अमाउंट होता है, जिसमें नमक की बहुत कम मात्रा होती है, that is known as fresh water. उसे हम क्या कहते हैं? fresh water. Although about 3/4 of the earth's surface is covered by water, very little of it fresh water. कि हाँ, ऑलमोस्ट हमारी अर्थ का जो 3/4 पोर्शन है दैट इज कवर्ड विथ वाटर, वो पानी से कवर्ड है, बट वेरी लिटिल फ्रेश वाटर उसमें बहुत कम है। अबाउट 97 ऑफ द अर्थ वाटर इज एन ओशन एंड सीज। अर्थ का जो 97% है वो ओशंस और सी में है। दिस इज सलाइन वाटर एंड नॉट सुटेबल फॉर ह्यूमन कंजप्शन। कि ओशंस और सी में जो वाटर है दैट इज सलाइन, सलाइन मीन्स होता है खारा पानी, नमकीन पानी है जिसमें सॉल्ट का कंटेंट बहुत ज़्यादा है, और नॉट सुटेबल फॉर ह्यूमन कंजप्शन, ह्यूमन बीइंग के कंजप्शन यूज़ के लायक नहीं है। द रिमेनिंग 3% ऑफ फ्रेश वाटर, 97 तो ओशन और सी में हो, 3% जो फ्रेश वाटर है, आउट 3%, इस 3% में से भी 2% is in the form of caves, ice caves and glacier which cannot be reached to us. इस 3% फ्रेश वाटर में से भी 2% वाटर ऐसा है जो आइस के रूप में या ग्लेशियर्स में हमेशा जमा हुआ रहता है और हम उसे यूज़ नहीं कर पाते हैं। देन ओनली रिमेनिंग 1%, केवल अब 1% वाटर है दैट वाटर इज इजीली अवेलेबल एंड फिट फॉर ह्यूमन यूज। ओनली द वाटर विच वी आर यूजिंग दैट इज ओनली 1% फ्रेश वाटर. It is found as surface water in the rivers and lakes, as groundwater and as water vapor in the atmosphere. Next one is saline water. Water containing a large amount of dissolved salt is called saline water. As I told you, fresh water क्या होता है? जिसमें salt का content बहुत कम होता है. इसका अपोजिट है saline water, खारा पानी जिसे हम कहते हैं. सलाइन वाटर कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट, इसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, एंड दैट इज़ वाई वी कॉल इट सलाइन वाटर. द ओशंस एंड सी हैव सलाइन वाटर. देयर आर वेरियस टाइप ऑफ सॉल्ट डिजॉल्व इन ओशन वाटर, बट सोडियम क्लोराइड और कॉमन सॉल्ट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, calcium sulfate are the main ones. These are the name of salts. The amount of salt in the ocean water is called salinity. Now what is salinity? क्या होता है salinity? The amount of salt, कि salt की मात्रा ocean water में कितनी है उसे हम कहते हैं salinity. The salinity of ocean water is on average of 55 per 1000. हम ऐसा मानते हैं कि सैलिनिटी की जो ओशन वाटर का जो पानी, ओशन में जो वाटर है उसमें सैलिनिटी का अमाउंट कितना है? 35 per 1000. दिस मीन, इसका क्या मतलब हुआ कि इफ़ वी टेक 1000 ग्राम ऑफ ओशन वाटर, अगर हम 1000 ग्राम ओशन वाटर को लेते हैं तो उसमें 35 ग्राम डिजॉल्व सॉल्ट होती है, दैट इज़ नोन एज सैलिनिटी. उसका मतलब है कि 35% उसमें सैलिनिटी है. Salinity of ocean water is, however, not the same in all the places. It depends upon the following factor. कि हर जगह ओशंस में सैलिनिटी यानी नमक का जो कंटेंट है वो एक जैसा नहीं होता है. इट डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स. सम फैक्टर्स आर देयर, कुछ ऐसे कारण हैं जो उस पर डिपेंड होती है नमक की मात्रा कहाँ कितनी है. फर्स्ट वन इज़ द रेट ऑफ इवापोरेशन. पहला है रेट ऑफ इवापोरेशन, यानी जिस एरिया ओशंस विच आर नियर द इक्वेटर्स, कि वो एरिया जो इक्वेटर के आसपास हैं जहाँ इवापोरेशन बहुत ज़्यादा होता है वहाँ सैलिनिटी का अमाउंट भी ज़्यादा होगा, नमक की मात्रा ज़्यादा होगी.
सेकेंड वन इज द अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन। अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन, जहाँ बारिश ज़्यादा होती है, जिन एरियाज़ में बारिश ज़्यादा होती है वहाँ के ओशंस में सैलिनिटी का अमाउंट कम होता है, क्योंकि वहाँ फ्रेश वाटर कंटिन्यूस मिलता जाता है ओशन में, तो वहाँ सैलिनिटी का अमाउंट कम होता है। अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर दैट इज एडेड टू द ओशन, कि ओशन में कितना फ्रेश वाटर आके, कितनी नदियाँ, कितनी रिवर्स आकर मिल रही हैं, जितनी ज़्यादा मिलेंगी उतनी ज़्यादा नमक की मात्रा उस एरिया में कम हो जाएगी। तो ऑल दीज थ्री आर द फैक्टर, जो ये 3 फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं अमाउंट ऑफ सैलिनिटी इन द ओशन। नेक्स्ट वन इज द टेम्परेचर ऑफ ओशन वाटर। द टेम्परेचर ऑफ ओशन वाटर इज नॉट सेम एवरीवेयर एंड ऑल टाइम ऑफ द ईयर, कि ओशन वाटर का जो टेम्परेचर है इट इज़ नॉट सेम एवरी ईयर, हर जगह सेम नहीं है, पूरे साल भी सेम नहीं होता और हर जगह भी सेम नहीं होता। ओशंस आर द वार्मेस्ट नियर द इक्वेटर। द ओशंस विच लाई नियर द इक्वेटर, इक्वेटर के आसपास जो ओशन है दे आर वार्मेस्ट एंड बिकेम कूलर टुवर्ड्स द पोल, एंड एज वी मूव टुवर्ड्स द पोल, जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाते हैं ओशन का वाटर का जो टेम्परेचर है वो कूल होता जाता है। द डिफरेंस बिटवीन द समर एंड विंटर टेम्परेचर ऑफ द ओशन आर ग्रेटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर देन द सदर्न हेमिस्फीयर ड्यू टू द वास्ट एक्सपेंड ऑफ ओशन इन द सदर्न हेमिस्फीयर। कि जो समर और विंटर का टेम्परेचर है ओशन वाटर का वो भी बिल्कुल डिफरेंट होता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इफ़ यू सी द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर देन और सदर्न हेमिस्फीयर, हम दोनों देखते हैं। इक्वेटर जो सेंटर की लाइन है दैट इज इक्वेटर, इक्वेटर के ऊपर है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इक्वेटर के साउथ में है सदर्न हेमिस्फीयर। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो लैंड पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा है और जो वाटर है, ओशन है, वाटर है वो बहुत कम है। तो ज़्यादातर यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा क्या रहता है, हाई रहता है। एंड सदर्न पोर्शन, इफ़ वी सी सदर्न पोर्शन में बहुत ज़्यादा जो है ओशन वाटर, पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है और लैंड कंटेंट कम है, तो यहाँ पे जो कूलर, यहाँ पे जो पानी है वो ज़्यादा कंपैरिजन टू नॉट ज़्यादा ठंडा पाया जाता है। नाउ इम्पॉर्टेंस ऑफ ओशन। ओशंस आर इम्पॉर्टेंट इन मैनी वेज। ओशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। क्या क्या है, लेट्स सी। ओशंस आर द प्राइम सोर्स ऑफ ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन। ड्यू टू द ओशन, ओशन के कारण ही किसी भी जगह की ह्यूमिडिटी, अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी डिसाइड होती है और अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन। जितना ज़्यादा ओशन वाला एरिया होगा वहाँ पे प्रेसिपिटेशन, इवापोरेशन ज़्यादा होगा, इवापोरेशन ज़्यादा होगा तो फिर वहाँ पे वाटर वेपर का कंटेंट ज़्यादा बनेगा और फिर प्रेसिपिटेशन भी ज़्यादा होगा। तो ओशन जो है वो रेनफॉल करवाने में हेल्प करते हैं। सेकेंड, दे मॉडरेट द क्लाइमेट ऑफ द कोस्टल रीजन, कि ओशंस जो हैं, द प्लेसेस विच आर नियर द ओशन, कि वो प्लेसेस जो ओशंस के आसपास होते हैं वहाँ क्लाइमेट कैसा होता है, मॉडरेट होता है, ना ज़्यादा गर्म और ना ज़्यादा ठंडा। थर्ड, marine life found in the ocean water provides a source of livelihood to many people, कि ओशन में जो मराइन लाइफ है यानी समुद्री जीव हैं वो बहुत सारे लोगों के लिए लाइवलीहुड का साधन है। नेक्स्ट वन इज सॉल्ट डिजॉल्व्ड इन द ओशन वाटर एंड मिनरल डिपॉजिट्स इन द ओशन फ्लोज आर द इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंस टू अस, कि जो ओशंस हैं उनसे हमें सॉल्ट मिलता है, नमक मिलता है और बहुत सारे सो मैनी मिनरल्स आर देयर इन द ओशन। ओशन का जो फ्लोर है वहाँ पे बहुत सारे मिनरल डिपॉजिट्स हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। ओशनिक वेव्स एंड टाइड्स कैन बी हार्नेस्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ओशन वाटर में जो टाइड्स आते हैं दैट आर यूजफुल टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के काम आते हैं। Ocean serves as a means of transport. As you all know, ocean is also an important means of transport. Next one is circulation of ocean water. The water of the ocean was constantly in motion. They move horizontally as well as vertically. The movement of ocean water are of two types, waves and currents. सर्कुलेशन ऑफ ओशन, ओशन वाटर जो है वो कंटिन्यूसली मूव करता है। एज यू हैव सीन द ओशन, आपने कभी ओशन देखा हो तो ओशन वाटर कॉन्स्टेंटली, लगातार उसमें मूवमेंट होता है। तो हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल, दो तरह के मूवमेंट होते हैं, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट एंड वर्टिकल मूवमेंट। द मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर जिसे हम टू टाइप्स में कहते हैं, वेव्स एंड करंट्स।
These movements are caused due to the following factors. अब ओशन वाटर में कंटिन्यूसली जो मूवमेंट होता है उसके लिए कौन से कारण हैं? फर्स्ट वन इज डिफरेंस इन टेम्परेचर. पहले तो डिफरेंस इन टेम्परेचर. सेकेंड वन इज डिफरेंस इन सेलिनिटी यानी अमाउंट ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट इन दैट वाटर. थर्ड वन इज वेरिएशन इन डेंसिटी ऑफ सी वाटर. सी वाटर में जो सॉल्ट की डेंसिटी है, कितनी घनत्व है, कितनी उसमें मिनरल्स प्रेजेंट हैं, वो डिपेंड उस पर भी ओशन करंट और वेव्स करंट्स और वेव उसमें भी उससे भी पता चलता है कि वो ओशन करंट जो है ओशन वाटर कैसे मूव करेगा. नेक्स्ट वन इज प्रिवेलिंग विंड कि उस एरिया में किस तरह की विंड्स प्रिवेल करती हैं, कौन सी विंड चलती हैं, वो भी ओशन वाटर के सर्कुलेशन में हेल्प करती हैं. Waves are the alternate up and down movement of the water particles caused by the wind. Now what is wave? Wave क्या होता है? Up and down movement of water. Water का up and down movement caused by the wind. जो किसके द्वारा होता है? Wind के द्वारा. That is called wave. When blowing winds disturb the water, waves are produced. जब winds blow करती हैं और वो ocean water को disturb करती हैं, दैट तो विंड प्रोड्यूस होती है, तब विंड्स बनती हैं, वेव्स बनती हैं. पार्टिकल्स ऑफ वाटर वॉज पुश डाउन बाय द विंड एंड दे कम अप अगेन. कि जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो पुश किए जाते हैं, उनको पुश कौन करता है? विंड पुश करती है. एंड दे कम अप अगेन, वो ऊपर जाते हैं, देन अगेन डाउन, देन अप एंड अगेन डाउन. दिस अप एंड डाउन मूवमेंट इज पास्ड फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर एंड इज विजिबल एज अ वेव. और ये पार्टिकल्स ऊपर नीचे जाते हैं और हम अगर दूर से देखते हैं तो हमें ये एक वेव के रूप में लगते हैं, लहर लगती है कि ऊपर नीचे मूवमेंट है. द वेव ट्रेवल्स इन द डायरेक्शन ऑफ द विंड. वेव्स हमेशा ट्रेवल करती हैं कौन सी डायरेक्शन में? डायरेक्शन ऑफ द विंड. इट इज एक्चुअली द मोशन दैट इज ट्रांसपोर्टेड. द वाटर पार्टिकल्स डू नॉट ट्रेवल. The upper part of the wave is called crest and the lower part is called trough. The vertical distance between the crest and trough is called wavelength and the horizontal distance between two crests or two troughs is called wavelength. अब now a diagram is given here student. एक diagram दिया हुआ है, इसमें जो height है, ठीक है, क्रस्ट और थ्रो के बीच की जो हाइट है उसे कहते हैं वेव हाइट. द वर्टिकल, दिस इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन क्रस्ट एंड थ्रो इज कॉल्ड वेव हाइट. इसे हम क्या कहते हैं? वेव हाइट. और जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है दो क्रस्ट के बीच में या दो थ्रॉफ के बीच में, दैट इज नोन एज वेव लेंथ. उसे हम कहते हैं वेव लेंथ. क्लियर? द शेप एंड हाइट ऑफ द वेव्स डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ विंड. A light breeze produces gentle waves, while violent and stormy winds create huge waves which often cause widespread destruction. कि shape and height of a wave, किसी भी wave का what will be the shape, what will be the height, वो depend करता है speed of wind पे. Light breeze, if the wind is very breeze, हल्की हवा चल रही है तो वो gentle wave, तो उसमें बहुत हल्की हल्की ओशन में वेव आती हैं. But if the violent stormy winds are there, बट इफ़ अगर विंड्स कैसी होंगी? बहुत स्ट्रॉमी होंगी, तो ह्यूज वेव्स, बहुत बड़ी बड़ी वेव्स उठती हैं एंड दे इवन कॉज डिस्ट्रक्शन. और वो कई बार डिस्ट्रक्शन यानी तबाही बर्बादी भी कर देती हैं. ओके स्टूडेंट, दैट्स ऑल इन दिस पीरियड. वी विल कंटिन्यू आवर चैप्टर इन आवर नेक्स्ट क्लास. That's all for today's class. Okay, thank you and have a nice day.